Draw this diagram, then we will write. If B and B makes an angle theta with each other. You can write a velocity and magnetic field. If velocity and magnetic field makes an angle theta. If velocity and magnetic field makes an angle theta with each other, as shown in figure, velocity will have two components. Velocity will have two components. The parallel component v cos theta. The parallel component v cos theta in the direction of magnetic field. In the direction of magnetic field. And perpendicular component v sin theta. And perpendicular component v sin theta. Due to v cos theta, the particle should move in a straight line. Due to v cos theta, particle should move in a straight line. And due to v sin theta, particle should move in circular path. Therefore, the resultant path followed is helical. Resultant path followed is helical. The radius of circular path for helix is r कितना आ जाएगा? कल फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? r का r का फॉर्मूला क्या आया था? mv by qb. mv by qb. इसमें जो सर्कल में मूव कर रहा है that is because of v perpendicular. So radius is mv perpendicular by qb, or you can say radius is mv sin theta by qb. Also time period of revolution. That will be 2 pi r by v perpendicular. So ये सेम ही आएगा 2 pi m by qb. Another term we calculate is pitch of helix. Pitch of helix होती है horizontal distance traveled in one circular rotation. Basically मतलब ये distance कि एक सर्कुलर रोटेशन करने में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया. जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की दो वायर्स में डिस्टेंस कितना होगा, तो वो कैसे निकलेगा? v cos theta into t. V cos theta into t, and t is 2 pi m by qb. So you can write pitch of helix. It is the horizontal distance traveled. It is the horizontal distance traveled in one circular rotation. It is the horizontal distance traveled in one circular rotation. It is the horizontal distance traveled in one circular rotation. Mathematically, pitch of helix is
V cos theta into 2 pi m by qb. V cos theta into 2 pi m by qb. हमें given a uniform magnetic field of strength B exists in a region of width D. Particle of charge q and mass m is shot perpendicularly into the magnetic field. Time spent by the particle in the magnetic field if D is less than mu by qb and D is greater than mu by qb. फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है अगर हम ध्यान से देखें तो radius of circular path is it's mu by qb. इस क्वेश्चन में दिया d is greater than mu by qb मतलब d is greater than r. अगर d r से बड़ा है, अब इस डायग्राम को देखते हैं, हमारे को ऐसे डायग्राम गिवन है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स and b is perpendicular inwards. b is क्रॉस से दिया b, चार्ज q मास m, तो v क्रॉस b, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, फोर्स जो लगेगी दैट विल बी, तो जो पाथ फॉलोड होगा और इधर से बाहर, बिकॉज हमें दिया है फर्स्ट केस में दिस r इज लेस देन d, तो टाइम स्पेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड. सेमी सर्कल पूरा किया इसने मैग्नेटिक फील्ड में, सेमी सर्कल पूरा किया, पूरा सर्कल पूरा करता तो टाइम होता 2 पाई m by qb. सेमी सर्कल का टाइम इट विल बी पाई m upon qb. So we say if d is greater than r, the particle will complete semicircle inside magnetic field. And time spent in magnetic field is this. ये first part easy था. Second है if d is less than radius. If d is less than the radius, तो ये सेमी सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा. इस रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर तो करेगा बट ये ऐसे इधर सेमी सर्कल अभी पूरा भी नहीं किया होगा, यहां से बाहर चला जाएगा. तो हमें इस पॉइंट से यहां तक जाने का टाइम बताना है इफ डी इज लेस देन आर, बिकॉज इस केस में इसका रेडियस ज्यादा है और डिस्टेंस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है, तो इस पॉइंट से यहां तक जाने का टाइम. क्वेश्चन समझ आया पहले क्या करना है इसमें? देखो अगर इसमें डाउट है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है.
अगर मैं सर्कल बनाता हूं, एक चार्ज पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू हुआ और इधर से बाहर चला गया, रेडियस इसका आर है, पर जितना टाइम उसने मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया, ये डिस्टेंस डी है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल E by R. साइन थीटा इज डी बाय आर। अब मेरे को बताओ, यहां पे अगर वो यहां से बाहर निकल रहा है, ये एंगल सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। या ये एंगल थीटा होना चाहिए? दोनों में से कौन सा एंगल थीटा होना चाहिए, थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 1 The theta 1. Because angle between two lines is same as angle between their perpendiculars. इसमें और इसमें एंगल थीटा दिया, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा, यही डिफ्लेक्शन एंगल है। तो डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो गया, साइन इनवर्स डी बाय आर। समझ आया इतना? डिफ्लेक्शन एंगल इज साइन इनवर्स डी बाय आर। We say if d is less than r, then deflection angle through magnetic field कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? यस। तो ये थीटा एंगल कवर करने में टाइम कितना लगा? हमारे पास थीटा आ गया, मैं अगर आपसे पूछूं ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? और टी कितना था? मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज क्यू बी बाय एम। ऑल्सो एंगुलर एक्सेलरेशन है या नहीं है? नहीं। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। यस। तो टी कितना हो गया, थीटा बाय ओमेगा, दैट मींस m अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स डी बाय आर। यही आया आंसर। देखो क्लियर है सबको? हमें सिर्फ यही देखना था कि डेविएशन थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। एक बार हमें डेविएशन पता चल गई तो फिर आप कंसेप्ट लगा दो, डेविएशन इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा हम निकाल सकते हैं बिकॉज हमें टाइम पीरियड पता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस में एक्स में हर एक में लिखा हुआ था मेक एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशंस, लेकिन यहाँ पे तो जैसे विदाउट अप्रोक्सीमेशंस ही आ गया जैसे आंसर, तो वो ऐसे ही लिखा हुआ है? मतलब या कोई हमने देखता लगा हूँ देखता हूँ।
पहले इसको समझो, देख लेते हैं HC में भी क्या है। क्लियर है ये? यस सर, कर इसमें दिया नोट? यूज की ना, क्या इसमें तो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज की ना अभी तक। नहीं, इसमें कोई नहीं यूज की हमने। ओके सर। उसमें अप्रोक्सीमेशन इसलिए आ रही होगी बिकॉज ये d बहुत कम दिया होगा एज कम्पेयर टू रेडियस, तो फिर वो साइन थीटा टैन थीटा को इक्वल लेके सॉल्व कर रहा होगा। ओके सर। उस तरह का कुछ कंसेप्ट हो सकता है, देख लेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा कोई। ये इजी है, अब इसको कर दो खुद से सॉल्व। What should be the speed of charged particles so that it can't collide with the upper wall? Also find the coordinate of the point where the particle strikes the lower plate in limiting case of velocity. हमने बताना है where will it strike? सर डायग्राम जूम कर दो। हमें इस फॉर्म में गिवन है सर एक मिनट क्वेश्चन नोट करना है। कि पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है, x is equals to 0 0 से। ओरिजिन से यू कैन से पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। मैं इधर अलग से डायग्राम ही बना देता हूँ। V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट। लेफ्ट। V क्रॉस B, B इज इनवर्ड्स, तो किधर से जाएगा और किधर से बाहर निकलेगा? इधर से क्या फोर्स किस डायरेक्शन में लगी? V क्रॉस B, तो पाथ फॉलोड हमें दिया इट शुड नॉट स्ट्राइक द अपर प्लेट, मतलब ये ऐसे जाना चाहिए। पहले तो हमने बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो सो दैट इट डज नॉट स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है d, ये रेडियस के इक्वल क्रिटिकल केस लें तो नॉर्मली r की वैल्यू d से कम होनी चाहिए, थोड़ी सी कम, तो वी कैन से क्रिटिकल केस हो जाएगा कि d शुड बी इक्वल्स टू r या r शुड बी लेस देन इक्वल टू d। तो r इज mv by qb, mv by qb should be equals to less than equal to d, वहां से v आ जाएगा। फिर हमने बताना इसने कहां स्ट्राइक किया, तो ये डिस्टेंस कितना? 2R. 2r। कोऑर्डिनेट्स अगर रीजन मार्क किया मैंने, y एक्सिस भी मार्क किया हुआ है, सो ये x एक्सिस या y एक्सिस, तो दिस ये कोऑर्डिनेट विल बी -2r एंड 0, बिकॉज हमें सेकंड पार्ट में बताना था ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। सो पहले पार्ट में है वेलोसिटी कितनी हो सो दैट इट डज नॉट स्ट्राइक, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है जहां पे हमें पता है कि r इज mv by qb। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, पर रेडियस d से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर पार्टिकल नॉट टू स्ट्राइक द अपर प्लेट।
क्रिटिकल केस लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा भी कम 0.001 मिलीमीटर, तो भी इट विल नॉट स्ट्राइक. एंड फिर सेकेंड पार्ट समझ में आया कैसे किया है? So you can write for particle not to strike the upper plate, maximum velocity can be, for particle not to strike the upper plate, maximum velocity can be qbd over m. Maximum velocity is qbd over m. Moreover, as the force acts towards negative x-axis, moreover, as the force acts towards negative x-axis, the particle will complete semicircular path. The particle will complete semicircular path and strikes the point whose coordinates are -2r and 0. Whose coordinates are -2r and 0. Sir, repeat करना last time. Strikes the point whose particle will complete semicircular path and strikes the point on the lower plate whose coordinates are -2r and 0. Strikes the plate at a point whose coordinates are -2r and 0. Proton is accelerated by a potential difference of 500 kilovolt, flies through transverse magnetic field 0.51 Tesla. The field occupies a region of space d is equal to 10 centimeter in thickness. Find the angle through which the proton deviates from initial direction of motion. करो इसको solve अब खुद से. Because deviation show की है, find the deviation. कि डेविएशन कितनी होगी. हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखो तो फिर मैं नहीं करूं. सबसे पहले निकालना है क्या. प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 किलोवोल्ट. सो यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ velocity. Velocity. यहां से वेलोसिटी की वैल्यू करो. चलो लेट्स सी करते हैं सॉल्व इसको. पहले वेलोसिटी ही निकालो. कंसेप्ट लगेगा कि कंसेप्ट क्या लिखोगे ऊपर. Q delta V is equal to half mv square. Decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. So Q delta V is equals to half mv square. So you can write as the proton is accelerated by potential difference delta V, the decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. सर एक बार शुरू से बोल दो. As proton is accelerated by a potential difference of delta V, सर the इंक्रीज इन काइनेटिक के बाद क्या बोल रहे थे दोबारा बोल. decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. Mathematically, if d is less than r as shown in figure,
Mathematically, if D is less than R as shown in figure, the deviation angle sine theta is equals to D by R. Deviation angle sine theta is equals to D by R. हमारे पास है decrease in electrostatic potential energy in q delta v, या v लिख लो इसको बेशक, हाफ एम वी स्क्वायर. Radius of path is ये आ गया रेडियस. Magnetic field is 0.51, 10 centimeters and 500 kilovolt. देखना बुक का आंसर 30 डिग्री है, तो ये वैल्यू आ रही है हाफ सॉल्व करके. डी की वैल्यू क्या थी? क्या चीज? डी की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में? डी की वैल्यू दी थी 10 सेंटीमीटर. यस आ रही है. Sorry. आ रही है हाफ, सो थीटा विल बी 30. So this is how the deviations are calculated. तो स्क्रीन ऊपर कर दो एक बार क्वेश्चन ओपन. क्वेश्चन के लिए मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, चाहिए होगी क्लास के बाद. तो कर देने दो क्योंकि क्लास में टाइम नहीं मिल रहा क्वेश्चन लिखने का. मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस के लिए. तो
करें नेक्स्ट। जी करना नोट तो इसको कर लो एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें जैसे जो पार्टिकल है वो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर हम रेडियस का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यूबी। मतलब हमने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, क्यू डेल्टा वी के, तो देखो तो वही तो फॉर्मूला बन गया। ओके वेलोसिटी सर। भी यही आएगी ना, मतलब वो एक ही बात है, वैसे कर लोगे तो भी आ जाएगा। ओके सर। Two particles x and y having equal charges after being accelerated through same potential difference enter the region of uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2. Find the ratio of mass of x to mass of y. Easy, बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं चाहिए होनी इसमें, अपने आप सॉल्व कर दो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज हमें दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम। आपको पता है कि उनके चार्जेस सेम है या डिफरेंट है? लिखा है सर हैविंग इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस सेम है मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो रेडियस का फॉर्मूला जो अभी आप में से कोई बता रहा था, रेडियस का फॉर्मूला मैं ये भी लिख सकता हूँ। So we can say R1 by R2 is under root of M1 by M2 because हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन कि because charges are same, increase in potential energy or increase in kinetic energy is same. तो थोड़ा सा मिक्स आ गया, means electrostatics and magnetic. हमें दिया है a uniform charge Q mass M is moving under the influence of uniform electric field EI and uniform magnetic field BK. Magnetic field is along z-axis, electric field is along x-axis and follows a trajectory from P to Q as shown. The velocities are Vi and minus 2 Vi, minus 2 Vj होना चाहिए because diagram में J show की हुई है. Find the rate of work done by electric field at P, rate of work done by each field at Q. हमें rate of work done at P बताना है कि सिंपल ऐसे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सिस्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड दिया है BK. This is given as EI. Rate of work done at P and Q. P पे वेलोसिटी दी है
minus 2Vj. Rate at which work is done at P and Q. So कैसे करें इसको? F vector dot V vector. थोड़ा सा सोचो पहले. चार्ज दिया है Q. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब ये डिस्टेंस दिया है A, ये दिया है 2A. पहले इसमें ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. पहले स्पीड v है, बाद में 2v है. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगी या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगी? Electric field. मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकती बिकॉज मैग्नेटिक फोर्सेस Radial force. रेडियल. तो मैग्नेटिक फोर्स तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं सकती, इलेक्ट्रिक फोर्स ने ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है. अब अगर मैं P से Q तक की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है P से Q तक डिस्प्लेसमेंट ये बनेगी सिलेटेड बी एस. इसके दो कंपोनेंट्स, और ये वाई. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? इसका कोई यूज है? No, sir. E into Because this displacement is perpendicular. So work done by electric field is QE into 2A. Work done by electric field is, because field E है तो force हो जाएगी QE. तो work done by electric field is QE into 2A. And QE into 2A is equal to change in kinetic energy. Clear या नहीं है इतना बात? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं सकती. मतलब काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रिक नहीं बढ़ाई है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी? जितना वर्क डन करेगी P से Q जाने में. तो P से Q जाने में वर्क डन हुआ है QE into 2A F डॉट S. बिकॉज अगर मैं F डॉट S करता हूं तो S की वैल्यू, वर्क डन को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Fs cos थीटा, मतलब this is Fx, F is QE, X is 2A, and this work done is equal to change in kinetic energy. तो work done is equal to change in kinetic energy से मेरे पास E की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आएगी? रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? पावर, एवरेज पावर नहीं पूछी, इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है. इंस्टेंटेनियस पावर एट P एंड Q. पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट V. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? P पे पैरेलल. तो वो रेट ऑफ वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी. इस पॉइंट पे F और V परपेंडिकुलर हो गए बिकॉज फोर्स एक्ट कर रही है इधर और वेलोसिटी है डाउनवर्ड्स. तो यहां पे पावर 0. तो रेट ऑफ वर्क डन एट Q इज 0 और P पे हम निकाल सकते हैं. रेट ऑफ वर्क डन बाय ईच फील्ड एट Q. मैग्नेटिक का वर्क डन होगा कुछ Q पे? नहीं सर, उसका भी वर्क नहीं. मैग्नेटिक तो वर्क करती ही नहीं, तो मैग्नेटिक का वर्क तो 0 ही आना है. Q पे तो इलेक्ट्रिक का वर्क भी 0, मैग्नेटिक का भी 0. P पे इलेक्ट्रिक का वर्क डन हम निकाल सकते हैं. सारा कंसेप्ट समझ आया मैंने क्या किया? मैंने कहा कि बिकॉज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट थे. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक तो कोई काम करता नहीं है, मैग्नेटिक जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यहाँ पे हमने शो किया है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड पहले v है फिर 2v हो गई. जब स्पीड बढ़ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो किसने बढ़ाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ने बढ़ाई. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वेट कर देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ. वहां से हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी. E की वैल्यू आ जाएगी, फिर रेट ऑफ वर्क डन बोला, दैट मींस F डॉट V निकालना है.
P पॉइंट पे F और V पैरेलल है तो वर्क डन इज FV, Q पॉइंट पे F और V परपेंडिकुलर है तो वर्क डन इज 0. मैग्नेटिक का वर्क डन P पे भी 0, Q पे भी 0, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. क्लियर सारा फंडा? किसी को डाउट है तो पूछो. क्लियर सारा कंसेप्ट? तो फिर मैं लिखा दूं. लिखो इसको कंसेप्ट को. As charged particle moves in a region, as charged particle moves in a region in which both electric and magnetic field intensity are present. A charged particle moves in a region in which both electric and magnetic field intensity are present. Therefore, both electric as well as magnetic force acts. Therefore, both electric as well as magnetic force acts. But magnetic force is a radial force. But magnetic force is a radial force. It will not do any work. Magnetic force is a radial force. It will not do any work. Work is done by electric force only. And work done by electric force results in change in kinetic energy of the charged particle. Work done by electric force results in change in kinetic energy of the charged particle. Mathematically, work done by electric forces, फिर ये step लिख लो जो लिखा हुआ, work done by electric forces, F dot S, Fs cos theta और Q into 2A. Change in kinetic energy कितनी है? Change in kinetic energy half m2v square minus half mv square. मतलब 3/2 mv square. इक्वेटिंग कर दो. Work done by rate of work done by. Then we are perpendicular, so work done is 0. Last में लिखना है तो you can write rate of work done by magnetic force is 0 at all points. Rate of work सर done by हाँ सर जी. आपने एट के बाद पी लिखा हुआ है. किसके बाद? एट मतलब रेट ऑफ वर्क के नीचे.
हाँ रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एट पी, हाँ एफ डॉट पी, क्यू भी आएगा इधर, हमने क्यू बिकॉज ये तो ई की वैल्यू थी ना, तो क्यू डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज एफ की सब्सटीट्यूट करनी थी, मैं ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी, सो एफ इज क्यू ई, क्यू कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो डायमेंशनली गलत बन रहा था रिजल्ट। देखो क्लियर है सबको कैसे किया? कुछ इसमें पूछने वाला है तो क्लियर है, नेक्स्ट करें। ये इजी है, ये खुद ही करो सॉल्व। Proton, alpha particle, deuteron are moving in circular path with same kinetic energy. Find the ratio of the radii and time periods. Proton, alpha particle, deuteron. Proton का charge और mass q और m अगर हम लें तो deuteron का charge Q mass 2 2m. Alpha particle का charge 2Q q और mass 4m. और those are find the ratio of the radii and time period. Kinetic energy same दी है. Moving in circular path with same kinetic energy, same magnetic field. Because magnetic field or kinetic energy same है, तो I can say this is proportional to m by q. 3 particles हैं, सॉल्व कर लो सबके मास और चार्ज सब्स्टिट्यूट करके। हो जाएगा ये। और टाइम पीरियड की जब रेशो निकालनी है तो मैं टाइम पीरियड को ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई m अपॉन क्यू बी था,
तो मैं आई कैन राइट इट एज बिकॉज बी सेम है. प्रोटॉन के लिए m/q, न्यूट्रॉन के लिए 2m/q और अल्फा पार्टिकल के लिए 4m/2q. सो रेशो क्या आ गई? सिमिलरली ऊपर निकाल लो. रेडियस की रेशो क्या आएगी? 1:1:√2. This comes out to be 1:√2:1. यही आ रही है. Yes. देखो इसमें कुछ समझ नहीं आया तो कल करेंगे. तो इसके अब HC के और क्वेश्चन भी कर सकते हो. अभी HC के कितने डाउट्स थे जो कल दिए थे? उसमें कितने डाउट्स थे? So अब हो जाएंगे वो. वैसे सेकंड पार्ट और फिफ्थ नहीं समझ आए थे, वो डेविएशन वाले थे. लेकिन अब डेविएशन वाले थे, सो अब डेविएशन वाले कर देना प्लस. सर हाँ जी, सर इसका PDF भेज दोगे सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में? भेज Yes, दूंगा भेज दूंगा. तो आपको 36 तक दिए थे, 32 से 36 तक. yes sir. 1 2 30 दिया था. 30 31. no sir. तो 30 31 37 38 39 40 41 42. 30 31 और फिर मतलब बेसिकली 30 से 42 तक जो छोड़े थे कल वो बाकी के कर लेना. 30 से 42 तक. और एक MCQs के 10 क्वेश्चन डालूंगा, वो करके देखना.